Hello students, so far we have seen our translation motion, that is the body moves in a line or in a straight path, and we have seen what is the circular motion. Now in this lecture we are going to see what is the rotational motion. So let's begin with our 15th lecture. Now first we will try to understand what is the difference between the circular motion and rotation motion, because in the both, as name suggests, circular and rotation, in both the body is moving in a circle, not in a circle, a body is rotating. Okay, in the case of this circular motion, we know the body either move in a circle or body moves along the circumference of circle. That means body is moving along the axis which is passing through its center, right? The body which is moving, or you can say rotating about the axis which is passing through the center of a circle. Okay, so this is the circular motion, right? Now if the body is big like this, if body is big like this and I have the axis here, right? What are a second example, the body is big like this and the axis is there, axis is this, and if this object is moving along this circular path, like this circular path, right? So again I can say that this body is having a circular motion. This body is having a circular motion. Okay, so what is the rotational motion? The rotational motion is that when this axis touches or crosses the body, and in this case what happened, in this case body will try to rotate along this axis. अब ये पूरी बॉडी along this axis travel कर रही है, that means axis which is passing through its part. बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर एक्सिस पास हो रही है, मे बी दिस और मे बी द सेंट्रॉइड, मे बी दिस, मे बी सेंट्रॉइड, right? In such cases the body tends to say that it's having a rotational motion. In such case body is tends to have the rotational motion. Let me repeat. In the case of circular motion, the body moves in a circle along an axis which is outside the body. Whereas in rotational motion, body rotates about the axis which is passing through its surface, or passing through it, either from the center, either from anywhere, but passing through the body. And the body is said to be have a rotational motion. And if this axis is outside the body, then body is said to be have the circular motion. Clear? Now move to the rotational motion definition that we have seen. In rotational motion, all the particles of the body moves in a circle. Okay, suppose this is the body. In this I have picked 3 particles. Suppose this is first particle, second particle, third particle, and this whole body is rotating with omega in this direction. So each particle, I have taken 3 particles only, but each body particle will have the circular motion, along this axis. Suppose this is the axis x dash. Okay, so along this axis, each particle of the body will have the circular motion along this axis, like this. Clear? So what is the rotational motion? In rotational motion, each particle of body will have a circular motion along the axis of rotation. But there are some particles. Can you tell me which particle in the body is not rotating? Which particle is in this body is not rotating? The particle which lie on this axis. That means these particles are fixed. They don't have any rotational motion. Okay, so let me read the definition. In the rotational motion, all the particles of the body move in a circle
except one who lies on the axis of the rotation. क्लियर? जो एक्सेस ऑफ रोटेशन में है ये सर्कुलर मोशन नहीं करेंगे, ये अपनी एक्सेस से मूव मतलब रोटेट करती रहेंगी, बट इट विल नॉट हैव द सर्कुलर मोशन. ठीक है? एंड देयर सेंटर्स लाइज ऑन द लाइन विच विल रिमेन फिक्स्ड. ठीक है? जो आपके जो सर्कल्स हैं जिसपे आपके पार्टिकल्स ऑफ बॉडी रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ये सारे सेंटर कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, और ये सारे सेंटर्स लाई करते हैं आपकी एक्सिस. इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा दैट एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन. अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर है, then this body will have the circular motion. If this axis of rotation lie on the body anywhere, but body touch कर रही हो या body अंदर हो, body के अंदर हो, body से आर पार हो रही हो, then the body is said to be having the rotational motion. Clear? Okay, so let's proceed further. Okay, now we will see some symmetry between the linear and this rotational, like some correlations, which are not exactly, but it's will try to see things. Okay, so here I'll take linear motion terms or parameter. Okay, and here I will take the rotational motion terms. So just write quickly the formulas. We have a velocity, a displacement. We have displacement. We have a velocity, which we can say ds upon dt, right? And here we have acceleration, what we can say dv upon dt. Okay, and one more, ds, sorry, v dv ds. And here we have force, which is mass into acceleration, right? Okay, and here we have work, which you have seen, it is f dot ds. So let's see, this is the displacement. So in this, it is the angular displacement which we denote by the theta. This is displacement, this is angular displacement. ठीक है? यहां पर आपकी वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी, यहां कैसी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं डी थीटा अपॉन डी टी. ठीक है? यहां पर एक्सेलरेशन, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जिसको हम बोलेंगे डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, और सेम डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा. क्लियर? यहां पर हमारा क्या होता है? फोर्स होता है. सिमिलरली यहां पर हम जो टर्म यूज करेंगे वो होगी टॉर्क. और टॉर्क को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स. क्लियर? नाउ यहां पर आपका मास होता है, मास हेयर इट्स मूवमेंट inertia. Okay, mass here is moment of inertia, and alpha, sorry, a you have seen become alpha. Clear? Work will be same, but work will define, this is force, so I will take torque dot, okay, dot, this is the vectors in this. Moment of inertia is not a vector, alpha is vector. Okay, in this okay like this. Now this is w torque dot t, राइट? क्लियर? ये आपके कुछ कोरिलेशंस हैं, मतलब जहां पर हमने इसके जो भी चीज थी मतलब की थी, जैसे मान लो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ किया था, उसमें यह था कि आपका नेट फोर्स 0 है, तो यहाँ पर नेट टॉर्क 0,
नेट ऑफ जीरो, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो। ठीक है, इसी पे पे हमने जो इक्वेशन मोशन थी सर्कुलर मोशन में करी थी, सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगी। ठीक है, सो वी विल यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब वन 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 मोर थिंग इज देयर, यहाँ पे आपका होता है लीनियर मोमेंटम p। ठीक है, इट इज m v। यहाँ पर होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, इट्स डिनोटेड बाय द l। आपका p से दिख नहीं रहा होगा, लेट मी टेक टू यहाँ पर होता है एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका m m इन रोटेशनल इट्स i। ओके, एंड दिस p बिकम ओमेगा। क्लियर, यहाँ पे ये ओमेगा डायरेक्शन है, वो आपका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। क्लियर, तो ये सब चीजें याद रखेंगे फॉर्मुलेज, तो इट विल हेल्प अ लॉट in further lecture. Okay, so let's begin with the relations. Okay, so let's begin. Now we will see the kinetics of rotation motion. Okay, so I'll take one example here. Suppose there is a rod. There is a rod. Okay, and I'll pick few particles on this rod. It's rotating about this point. Okay, this point, and I'll mark few points. This is point 1, this is point 2, this is point 3. So I'm going to write the displacement, angular displacement, angular velocities, and angular acceleration for this. So let me do the diagram complete. So these this rod, okay, this is a rod which is rotating in this direction. So I have picked three particles on this rod. I'm just observing the what kind of motion is going on. As we know that this rod, if this rod is hinged here, so this having the rotational motion, and each of this particle will have the circular motion along this axis of rotation. Okay, which is going beyond your crossing your screen. Okay, so so this will also move in this direction. Particles will move in this direction in a circle. Okay, so let's take another position of the rod. I am taking that this position, second position of the rod is here, somewhat here, and for coming here it take time dt. Once again, it take time dt. तो जो टाइम लगा पार्टिकल यहाँ से आने में वो था dt. ओके, सो जब यहाँ पे पार्टिकल्स 1 2 3 थे, तो अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन आई टेक दिस 1 dash, this is 2 dash, this is 3 dash. Okay, I mark the points like a dash, 1 dash, 2 dash, 3 dash. Okay, for this particle 1 2 3 respectively. So let's see what displacement they have covered. What displacement they have covered from when the particle moves in this direction from this is the position 1 to position 2. Okay, so first displacement 1, the displacement of particle 1 is, let's say, d theta. This angle is d theta, or you can say theta. Okay, avoid d theta, theta. This angle is theta. So the angular distance covered by the particle 1 is theta. Let's say theta 1. Same for the theta 2, that means particle 2. Okay, displacement, this angular displacement covered by the particle 2 is same theta. Same for the, I think, for this particle 3, yes. Okay, this is all theta. What is the angular velocity? If this system is moving with angular velocity omega at this time and with alpha angular acceleration at this time. Okay, so at this time, if the axis of symmetry is omega, rotation of this
rod along the axis of rotation is omega at this time. So the particle 1 having same omega 1, particle 2 having same omega 2, particle 3 having same omega 3, as same for the acceleration. This is particle 1 alpha 1 equals to alpha, and for particle 3 also it's equals to, right? Clear? So here we know that the direction of omega we can find out by using for all omega theta and alpha, we can find out using right hand thumb rule. Okay, direction by right hand thumb. Okay, in which you will just curl your fingers of the right hand along the direction of motion. Okay, your thumb will give the direction of this theta, alpha, and omega. Okay, and you know the relation between just we have seen the relations between omega and alpha and sorry, omega and theta. Okay, we will not going to write that thing, but now we are going to see the relation for this only. We are going to see the relation between the velocities of particle 1 to 3 and omega. Clear? So for this case, if the particle, let's say I'm going to have the velocity at initial position. So this was the velocity in the direction at that point, tangent here also, and here also. You can see these three velocities at the three different particles are parallel. Why? Because they are perpendicular to the rod. These velocities are perpendicular to the rod. That means they have a tangent perpendicular to the normals of the circles. Okay, this is the velocity v1 of particle 1. This is v2 of particle v2. This is v3 of particle v3. Okay, so what is the relation? As we know, the omega 1, omega 2, omega 3 is same. So velocity of particle 1 will be radius into omega. Radius into omega. Okay, and one more thing. If you want to know the velocity in vector notation, so it's omega cross r, not r cross omega. ये ध्यान रखना. Okay, keep this in mind. कि the velocity vector is equals to the omega vector cross r vector. Clear? ये याद रखना. Now, I'm not going to use vector notation for this equation. I'm simply write the magnitude. Okay, so here the velocity of particle 1 is equals to omega, because if I write omega, I have seen already omega same for all the particles. So omega into r1. R1 is the radius from this O to the particle 1. Okay. Now the velocity 2 is equals to the omega into r2. Okay, this is not cross r. It's not cross simple multiplication. For v3, omega into r3. That means the rate of distance from the origin, or you can say the axis of rotation to the particle. Clear? Now you can see clearly that the v1, v2, v3 are not equal. And we can see easily that v3 is greater than v2 and v2 is greater than v1. Why? Because as we going far from this axis of rotation, okay, so linear velocity at a particular point is more as compared to the particle which is near to the axis of rotation. Clear? Same we will see for the acceleration. What we will see for the, okay, we will see acceleration separately. Now here we are going to see the relation between the acceleration, omega and alpha. Okay, as we have discussed, what is the acceleration of linear acceleration in terms of circular parameter terms. Okay, we know, we can just let me write. First, the scientific acceleration, that means AR, it is R omega square plus tangential term, that is
आर अल्फा, ठीक है। तो ये होता है अलोंग नेगेटिव, दैट मीन्स इनवर्ड अलोंग द सेंटर, और ये होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. Okay, so this is the vector acceleration in terms of omega and alpha. Okay, clear. So let me write the acceleration at point 1, which is r1 omega, because omega 1 is same as omega, minus r vector. R vector is the vector towards the radius going inward to the center, going towards the center. ठीक है, ये वेक्टर जो डायरेक्शन है ये है. Now plus r1 alpha. Alpha 1 is same for alpha 2, alpha 3. So I am taking alpha. Tangential direction. Here the tangential direction is along the direction of velocity. And we have seen that if alpha is there, then velocity will increase. Okay, the magnitude of velocity will increase. As same for particle 2, r2 omega square. Clear? Now from here we can see that acceleration A is more than acceleration 1. Sorry, acceleration 2 is more than acceleration 1. Why? Because यहाँ पर अगर आप यहाँ पहुँचते हो at this, here the radial acceleration is more, as well as the tangential acceleration is more. Why? Because both radial acceleration, or you can say central acceleration, and tangential acceleration increases with the radius. Increases with radius. Radius के साथ increase करते जाता है. जैसे ही अगर मैं relative velocity लेता हूँ, relative velocity means the velocity, relative velocity, हाँ, relative velocity लेता हूँ, तो the velocity, let's say velocity of 2 with respect to 1. तो क्या होगा? It's simply the difference of radius r2 minus r1 into omega. अगर मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि देखो मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शायद किसी क्वेश्चन में अभी यूज हो जाए, आपके जो भी आप क्वेश्चन करोगे उसमें शायद यूज हो जाए रिलेटिव. ठीक है, क्वेश्चन आते हैं अभी इसमें, नहीं तो टॉम में आएंगे. सो अभी यहीं समझ लो इस चीज को. तो अगर मैं बात करता हूँ रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब a2 minus a1, a2 minus a1, क्लियर, a2 minus a1. ओके, सो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिंपल यहाँ पे जो आपका डिफरेंस ऑफ रेडियस आएगा. क्लियर. सो वी हैव सीन द काइनेमेटिक्स ऑफ दिस. जो जो टर्म्स हमें यूज करने हैं, किस तरह से करने हैं, फॉर्मूला देख लिया हमने. जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे वो ये है, वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर. एंड नेक्स्ट वन इज दिस. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे फर्दर हम काफी यूज करेंगे. एंड ये इंफॉर्मेशन कि आपका किसी पार्टिकल के लिए ओमेगा सेम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, और आपका एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है. ठीक है, ये हमने यहाँ पॉइंट्स पिक किए हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू अवर काइनेटिक्स पोर्शन. सो व्हाट द काइनेटिक वी आर गोइंग टू सी हियर. हमने देखो, लेट डिस्कस व्हाट वी हैव सीन इन द ट्रांसलेशन मोशन. हमने ट्रांसलेशन में ये देखा था कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स पड़ रहा है, ठीक है, इसे फोर्स पड़ रहा है, बट दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ओके, नहीं, ये वाला नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है. दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ठीक है. इफ दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इस पे कोई फोर्स पड़ भी रहे होंगे, सो व्हाट शुड आई से, द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस बॉडी इज 0, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है. इट्स हैविंग 0 वेलोसिटी, ये मूव नहीं कर रहा है. और what we can say, it having some constant velocity. ये दो केस पढ़े थे हमने, रेस्ट और constant velocity for the net acceleration 0. Clear? So in this case we have said that net force external force is 0. जैसे हमने ये बोला था कि ये आपका यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, because net force equals to the m into a. Clear? सेम चीज हम यहां बोलने वाले हैं इन द केस ऑफ रोटेशन. अगर अभी कोई बॉडी है, ठीक है, इट स्टैंड्स टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस
tends to, but because of some forces, but it's not rotating. It's not rotating. Okay, the first case is rest. First case is rest. Second case rotating, but with constant omega. कांस्टेंट ओमेगा, कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर रही है, केस अलग है भाई, ये अभी बात नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट केस रेस्ट है, तो रेस्ट होगा तो क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क, या फिर समेशन ऑफ ऑल दी टॉर्क्स जो भी इसमें अप्लाई हो रहे होंगे वो जीरो है। या फिर अगर रोटेट कर रही है आपकी कांस्टेंट ओमेगा से यहां भी सेम चीज होगी कि आपका क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क आपका जीरो है। बाहर से कोई भी फोर्स लग रहा होगा तो वो सब जीरो है, जो भी टॉर्क लग रहा होगा। क्लियर, यहां पे समझ में आ गया। नाउ इन द केस ऑफ दिस, अगर यहां पर, ये तो बात हो गई इसकी, अगर यहां पे फोर्स लग भी रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग भी रहा है, सो दिस एक्सटर्नल फोर्स, हमने बोला था लीनियर मोमेंटम इट्स इक्वल टू द m into a। यहां पर इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट जीरो, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो नहीं है तो या तो क्या करेगा, या तो ये रेस्ट वाले पोर्शन को रोटेट करेगा विद सम ओमेगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग ओमेगा था उसको, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें चेंज लेके आएगा, या तो कम करेगा या फिर इंक्रीज करेगा। आइदर इट विल डिक्रीज और आइदर इट विल इंक्रीज दी वैल्यू ऑफ ओमेगा, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट जीरो। क्लियर, सो यहां पे क्या आएगा, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द नेट एक्सटर्नल टॉर्क is equals to what, I into, sorry, not into, simply multiplication, so I into alpha, I into alpha। clear, I into alpha। and let me tell you one more formula for this torque। यहां पर हम इसको ये बोल सकते हैं, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल्स टू, हमने वेरिग्राम थ्योरम में पढ़ा था, इट इक्वल्स टू द net external force cross this, sorry, better to write summation outside this, r I r cross f I, so summation of this is summation, simple summation। क्लियर, यहां से हमने ये पढ़ा था r vector equals to f vector, f vector is the resultant vector of this summation of all the forces। ये हमने वेरिग्राम थ्योरम से पढ़ा था। ओके, क्लियर। सो व्हाट इज द काइनेमेटिक्स, सिंपल काइनेमेटिक्स जो मैं बात करूं, जो फॉर्मूला मैं यूज करने हैं यहां से, एंड दिस ट्रस्ट मी, दीज ओनली दीज फॉर्मूला आई एम गोइंग टू अप्लाई, दो ही फॉर्मूले मैं अप्लाई करूंगा यहां पे टॉर्क के लिए। फर्स्ट फॉर्मूला दैट मींस टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क बोलो या चाहे नेट टॉर्क बोलो, इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस नेट फोर्स। क्लियर, ये दो फॉर्मूले गांठ मान लेना, ठीक है। ट्राई टू लर्न बाय हार्ट, कहीं भी अप्लाई, अगर आप आपका रोटेशन मोशन में क्वेश्चन कर रहे हो, रोटेशन मोशन का, सो ये दो फॉर्मूले ही अप्लाई होंगे, ठीक है, दीज टू फॉर्मूले, और दोनों ही अप्लाई होंगे, हम इसको देखेंगे अभी क्वेश्चंस में। ओके, सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सो इन दिस, as in the translation motion we have seen the linear conservation of linear momentum, in this also rotational motion we have the conservation of angular momentum। clear, let's move to that। okay, so before going to conservation of angular momentum, let's see the angular momentum, right? So angular momentum is also called as the moment of momentum, linear momentum, moment of linear momentum। ठीक है, क्लियर, समझते हैं इसको। इससे कोई पॉइंट है, ये एक्सिस है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है विद v वेलोसिटी, इसका मास m। क्लियर,
So it's having the momentum what m into v. और अगर हमें बात करना है, हैव टू कैलकुलेट द लीनियर मोमेंटम, फर्स्ट थिंग किसके अबाउट, ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए. कोई बोले कि भाई लीनियर मोमेंटम, आई वांट टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम. सो फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू नो द पॉइंट और एक्सिस दैट अबाउट विच आई नीड टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम. ओके, सो आई हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द दिस पॉइंट ऑफ दिस बॉडी. ठीक है, इस बॉडी के लिए मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट दिस पॉइंट. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, जैसे हमने बात करी थी इन द केस ऑफ मोमेंटम की बात करी थी हमने, आई थिंक सेकंड लेक्चर था. ओके, थर्ड लेक्चर था, आई थिंक थर्ड लेक्चर था. तो उसमें क्या था, सिंपली आपकी जो वेलोसिटी डायरेक्शन है, मतलब वहां पे था फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर. ठीक है, सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी. एक आपको लोगे दिस डिस्टेंस. ठीक है, सपोज ये r है, r परपेंडिकुलर, आप ये बोल दोगे. सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा यहाँ पे? वैसे होता है क्या बाय डेफिनेशन? इट्स r क्रॉस p, r क्रॉस p. Just like we have seen, torque is r cross f, same linear momentum is r cross p. ठीक है, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर. बट वेलोसिटी अलग होता है भाई, हमने देखा वेलोसिटी अलग होता है. वेलोसिटी इज ओमेगा क्रॉस r, ये यहाँ पे अलग है, ध्यान रखना. अभी मैं आगे लिखवा भी दूंगा फॉर्मूले. ठीक है, सो फर्स्ट इज दिस फॉर्मूला. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r परपेंडिकुलर इनटू p, सिंपल p, और m इंटू v इंटू r परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जो भी आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा इन दिस वेलोसिटी, उससे परपेंडिकुलर जो r होगा ये होगा. क्लियर? ऐसे भी लिख सकता हूं मैं. सो सिंपली जब भी बात करेंगे ना मोमेंट की, मोमेंट ऑफ किसी चीज की, तो उसमें r मल्टीप्लाई हो जाएगा. सेम चीज ये होती है. व्हाट इज दिस टॉर्क? दिस टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, क्लियर? सो नाउ सी, सेम जैसे कि हमने पढ़ा था इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि अगर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 था, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया वेलोसिटी में, दैट मींस कोई भी मूवमेंट में चेंज नहीं आया. सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ये बोलता है कि आपका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. ये बात हुई थी. ठीक है, एंड डायरेक्शन किसके ऊपर पैरेलल होगी? वो आपका चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन पैरेलल होगी फोर्स की डायरेक्शन. ठीक है, क्लियर? सेम चीज यहाँ पर, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो कोई भी चेंज नहीं है लीनियर मोमेंटम में. सेम चीज यहाँ पर है. अब यहाँ पर जो फोर्सेज है, फोर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा? टॉर्क आएगा. एक्सटर्नल टॉर्क 0, एक्सटर्नल टॉर्क 0, दैट मींस टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड एज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड एक्सटर्नल टॉर्क. अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो आपका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं आएगा. दैट मींस हियर द लीनियर मोमेंटम विल बी 0, चेंज 0 होगा, कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो सेम यहां से आता है कि अगर आपका सिस्टम ऑफ बॉडीज है, ठीक है, सिस्टम ऑफ बॉडीज है, वन सेकेंड, टेक मी टू द नेक्स्ट पेज. अगर मान लो कि अभी 2 बॉडी है, 2 डिस्क है, लाइक दिस, छोटी डिस्क. ठीक है, और इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इनका सेम होना चाहिए. ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होना चाहिए दोनों बॉडी का, तभी हम ये लॉ लगा पाएंगे. ठीक है, इट्स हैविंग ओमेगा 1 वेलोसिटी. मैं बात नहीं कर रहा हूं, देखो आपकी जो ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा है वो ठीक है, मान लो अलग हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे उससे, बट उनकी एक्सिस है. मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एक साथ मूव कर रही है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी एक्सिस सेम होनी चाहिए, बस. इनकी एक्सिस सेम होनी चाहिए, बस. अब ये कितने ही अपने ओमेगा से मूव करते हैं, मुझे मतलब नहीं है उस चीज से, बस इनकी एक्सिस सेम होनी चाहिए. मैं लगा दूंगा ये लॉ. ठीक है, मैं ये लॉ लगा दूंगा. क्लियर? अब ये डिस्क 1 है, दिस इज डिस्क 2. चलो, डिस्क 1, दिस इज डिस्क 1, दिस इज डिस्क 2. ठीक है, अब हमें इस पे लगाना है मुझे लीनियर, क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम लगाना है. सिंपल, द बॉडी 1, एंगुलर मोमेंटम बॉडी 1 प्लस एंगुलर मोमेंटम बॉडी 2. एंगुलर मोमेंटम बॉडी 1 जब ये दोनों आपस में टकरा जाएंगी,
ठीक है। सो एन एंगुलर मोमेंटम बॉडी 2, दिस विल कंजर्व। और केस क्या है, इस डिस्क पे, इस फर्स्ट सेकंड डिस्क पे फर्स्ट डिस्क को हम आर्म से प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, प्लेस कर रहे हैं। अब क्या होगा, किसी का क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन सरफेस होगी, फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन आएगा तो कुछ टॉर्क के अगर आपका ओमेगा 1 बड़ा होगा, ओमेगा 1 बड़ा होगा, मान लिया ओमेगा 1 बड़ा होगा, और मान लिया फ्रिक्शन भी सरफेस है, आपकी सरफेस फ्रिक्शन है, ठीक है, बट ओमेगा 1 बड़ा होगा तो ये ट्राई करेगा ओमेगा 2 को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मान लिया जितना टॉर्क ये देगा ओमेगा 2 को उतना ही टॉर्क इसमें कम हो जाएगा, ठीक है, उतना ही टॉर्क कम हो जाएगा। दैट मींस यहां पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है फॉर द सिस्टम, सिस्टम में क्या है मेरा डिस्क 1 डिस्क 2, इन दोनों को मिला के सिस्टम बन रहा है। दैट मींस यहां पर जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क था, जो टॉर्क है वो अभी भी क्या है, 0 है। इन दिस केस ऑल्सो यहां भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, अपने आप मूव कर रहे हैं वो कांस्टेंट ओमेगा से, बट जेंटली प्रेस कर दिया मैंने उसको, फ्रिक्शन था मालूम पड़ा, उससे आपका फ्रिक्शन टॉर्क जनरेट होगा बट इक्वल अपोजिट होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस यहां पर भी आपका नेट टॉर्क जो है एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे 0 है। ओके, जब भी ये केस है आई कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली I1 ओमेगा 1 प्लस I2 सॉरी I2 ओमेगा 2 प्लस I1 ओमेगा 1 डैश प्लस I2 ओमेगा 2 डैश। ओके सर, ये इनर्शिया चेंज क्यों नहीं हुए? देखो, इनर्शिया इज सेम लाइक द मास। अगर आपकी एक्सेस सेम है ना, तो बॉडी, अगर एक बॉडी के लिए सेम इनर्शिया आएगा, ठीक है। हमने आपका जो सेम वो किया था लीनो मोमेंटम, उसमें मास सेम था ना, मास तो अलग नहीं हुआ ना, सेम चीज यहाँ पर है। अगर आपका एक्सेल रोटेशन सेम है ना, तो आपका इनर्शिया इज एक्ट लाइक अ मास इन रोटेशन, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करो, अभी हम देखते हैं इनर्शिया कैसे हम क्या प्लॉट करेंगे, ठीक है, क्लियर। यहां पर भी आप ये चीज ध्यान रख लो, यहां पर भी लीनियर मोमेंटम के 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम के 2 फॉर्मूले हैं, मैं कोई थोड़ा सा ये रिकॉल कर देता हूं। फर्स्ट इज आर क्रॉस पी, पी इज लीनियर मोमेंटम, और दूसरा क्या है, I इंटू ओमेगा, जस्ट लाइक P इज व्हाट, M इंटू V, सेम एज M जो यहां पे होता है I होता है रोटेशन में, ठीक है, और V होता है यहाँ पे ओमेगा, सेम। ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। कहीं भी किसी भी रोटेशन के क्वेश्चन में या तो टॉर्क की बात करी जाती है तो ये 2 फॉर्मूले लगेंगे, या फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात, सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बात करते हैं, तो ये 2 फॉर्मूले डेफिनेटली लगते हैं वहां पे, डेफिनेटली लगते हैं वहां पे। इन दोनों के बिना काम नहीं हो पाएगा, क्लियर। ओके, सो हमने बात कर ली काफी इनर्शिया की। सो लेट्स सी द इनर्शिया फॉर डिफरेंट केसेस क्विकली। ओके, सो वन सेकेंड। Okay, so let's talk now for the moment of inertia. Okay, so let's consider one body which is rotating about the x dash axis. Clear? Okay, just break this whole body in the particles. Okay, I'll just show this this 1 2 3 particles which having the circular motion about this x dash axis. ठीक है, क्लियर। तो what should be the moment of inertia for this case? यहां पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालता हूं, तो आई विल ब्रेक डाउन दिस बॉडी इन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखूंगा, फर्स्ट पार्टिकल दैट इज हैविंग, सपोज इट्स हैविंग द मास m1 इनटू इट्स रेडियस इन विच सर्कल इट इज मूविंग, ठीक है। जिस सर्कल में एक पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी रेडियस r डैश r1 डैश सॉरी r1, ठीक है। सो मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, एंड रेडियस इज द मोशन सर्कुलर मोशन, ठीक है, उस सर्कल की रेडियस है ये, ठीक है। सेम m2 r2, वाई r2, क्योंकि यहाँ पे रेडियस एक दूसरे पार्टिकल के रेडियस अलग हो सकती है, क्लियर। सेम m3 r3 स्क्वायर, सच दैट ऐसे करते 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 mn rn स्क्वायर। तो समेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स का इनर्शिया कैलकुलेट करके हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द होल बॉडी, ठीक है। एंड वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड, क्लियर। वहां पे हम ये करते हैं।
डी एम आर स्क्वायर इंटीग्रेट करते हैं। क्लियर? सो लेट्स सी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट डिफरेंट केसेस। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी शुड नो हम किस की बात कर रहे हैं, कौन सी एक्सिस अबाउट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, it is only about for the centroidal axis, that means the axis which is passing through the centroid। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कौन मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस पास तो कर रही है, बट वो किस तरीके से कर रही है पास, वो भी हमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो एक्स एक्सिस में कर रही है सपोज, ठीक है, जैसे मान लो ये फर्स्ट किस का, रिंग का और हॉलो सिलेंडर का है। जैसे रिंग ये हो गई, जो भी ये बात कर रहे हैं, ये सारी बात कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहे हैं, यानी इसके लिए बात कर रहे हैं। इस एक्सिस के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके लिए, तब मैं बता रहा हूँ ये, और ये सेंटर से पास हो रही है सेंट्रोइडल से, इन द केस ऑफ रिंग और इन द केस ऑफ हॉलो सिलेंडर। ये हो गया हॉलो सिलेंडर। ठीक है, सो लेट्स से इस केस के लिए क्या होगा, सपोज द बॉडी हैविंग द मास m, सो इन दिस केस m r square, okay, m r square, r is the radius of the ring or the hollow cylinder। ठीक है, वन मोर थिंग, हम किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिख सकते हैं m इंटू k स्क्वायर। ठीक है, m इंटू k स्क्वायर। ठीक है, एंड हेयर k इज व्हाट, इज k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन होता है k। देखो ये सब चीजें हमें पता है, ये सब चीजें हमें पता है, बट थोड़ा सा हम इसको क्विकली ले रहे हैं इसलिए। ठीक है, यू हैव टू मूव द क्वेश्चन अर्लियर। ठीक है, सो सेम फॉर द केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क, उसमें होता है m r स्क्वायर बाय 2, मास is the mass of disk or mass of cylinder, r is the radius of disk or radius of cylinder। ठीक है, और ये जो एक्सिस है, सपोज ये डिस्क है और सिलेंडर है। ठीक है, और ये जो एक्सिस है इट्स अ परपेंडिकुलर एक्सिस। यहाँ पे आती है बात रॉड की। रॉड का होता है m l स्क्वायर बाय 12। ठीक है, सपोज ये रेड है, रॉड है, सॉरी ये रॉड है, और रॉड का वर्टिकली ये एक्सिस है, कहां से पास हो रही है, सेंट्रोइड से पास हो रही है। इसके लिए है l इज दी लेंथ, होल लेंथ ऑफ दिस रॉड और मास m है। ठीक है, नाउ सी फॉर द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, अब स्फीयर से कोई भी एक्सिस पास होगी जो सेंटर से पास होगी, वो क्या होगी, वो आगे वर्टिकली होगी। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से कोई भी एक्सिस हो जो सेंटर से पास हो रही हो, सिंपल इन द केस ऑफ स्फीयर्स। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये दो होते हैं, सॉलिड और हॉलो। ठीक है, लोगों को याद हो जाते हैं, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं पड़ता सॉलिड किसका है और हॉलो किसका है। ठीक है, इसको याद करने के लिए कैसे याद करना है, जिसका ज्यादा होगा वो होगा हॉलो, क्योंकि मास दूर जितना ज्यादा होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, एक होता है 2/3, एक होता है 5/3। तो 2/3 होता है ज्यादा, सॉरी हाँ, तो 2/3 इज फॉर द केस ऑफ हॉलो स्फीयर। 2/3 mr स्क्वायर, और ये होगा आपका 2/5 mr स्क्वायर। क्लियर? आप लोग इस चीज को याद कर लें, इसके बिना हम रोटेशन मोशन में एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो याद कर लें, क्योंकि इसके बिना हम एक पत्ता भी रोटेशन मोशन में हिला नहीं पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नाउ थोड़ा सा हम एक चीज और देख लेते हैं, एक स्टेप है कि अगर मान लो सेंट्रोइड एक्सिस पे ना पूछ के कहीं और पूछ लिया, सो वी हैव टू थ्योरम्स हियर। ठीक है, ये बहुत जनरलाइज थ्योरम है, ये स्पेसिफिकली कहीं नहीं लगती है, हम इसकी बात करेंगे। सपोज आपका बॉडी यहाँ पर, ठीक है, बॉडी यहाँ पर है, और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम मेरे को लगानी है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगाऊंगा, जब मेरे को जो भी एक्सिस है वो कहीं और है, बट पैरेलल टू सेंट्रल एक्सिस है। सपोज ये आपकी सेंट्रल एक्सिस है जो बॉडी से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है, ये आपकी। ठीक है, दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, और ये जो है एक्सिस है पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू सेंट्रोइड, पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास एक्सिस। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर जो हम लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस, इसको मैं आई बोल रहा हूं, और इसको बोल रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस सेंट्रल एक्सिस, इसको बोल रहा हूं CM या COM, जो भी सूट करे आपको। ठीक है, सो अगर मुझे निकालना है इसके थ्रू, तो मेरे को चाहिए क्या चाहिए, मेरे को चाहिए डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। सपोज A,
ठीक है. So I can write easily. So I, the moment of inertia about the parallel axis, parallel to central axis, equals to the moment of inertia from the central axis, ये प्लस इट्स मास, जो भी इसका मास है पार्टिकल का या जो भी ऑब्जेक्ट है इसका मास इनटू द डिस्टेंस बिटवीन इट, उसका स्क्वायर, दैट मींस ए स्क्वायर. ठीक है. ये हम इस तरह से कर सकते हैं. सपोज इन द केस ऑफ रॉड, मैंने अभी बात करी थी इस एक्सेस से. अगर मुझे निकालना हो इन द केस ऑफ रॉड अबाउट द एंड एक्सेस, तो क्या करूंगा मैं? लेट मी टेक इसको मैं वहीं ले लेता हूं. यहीं ले लेता हूं उसको. ठीक है. तो यहाँ पे उस केस में था मेरे को इसके लिए निकालना है आई, और इसके लिए सी ओ एम है. ठीक है. सो सी ओ एम क्या था? एम एल स्क्वायर बाय 12. ठीक है. प्लस मास इनटू, अब मुझे ये पता है सेंटर कहां से, इसका एंड से, इस डिस्टेंस इतनी L/2 है, तो L/2 का स्क्वायर. इसे कैलकुलेट करोगे तो एंड से जो आता है वो आता है एम एल स्क्वायर बाय 3. ये भी याद कर लेना, ये बहुत रैंडम आएगा यूज करने के लिए, स्पेशली रॉड का. ठीक है. एम एल स्क्वायर बाय 3 व्हेन वी आर टेकिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सिस. ठीक है. एंड एक्सिस से ले रहे हैं तो क्लियर. नाउ लेट्स मूव. ये याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी यूज हो जाता है. पैरेलल एक्सिस थ्योरम जनरलाइज्ड है ये. क्लियर. लेट मी क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले इन्वॉल्व हो चुके हैं. दिस इज द फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. क्लियर. नाउ मूव टू परपेंडिकुलर एक्सिस. परपेंडिकुलर एक्सिस की लिमिटेशन क्या है? ये लगती है सिर्फ और सिर्फ लैमिनार ऑब्जेक्ट पे. ठीक है. लैमिनार ऑब्जेक्ट, लैमिनार क्या होते हैं? जो कि 2D ऑब्जेक्ट होते हैं. 2D ऑब्जेक्ट यानी एक प्लेन पे. तो इसमें क्या होता है कि हमें कोई बॉडी दे रखी है, उसकी हमें एक्सेस पता है, मतलब वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस एंड वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सेस. So simply we can find the moment of inertia about the axis which is perpendicular to this laminar portion, जो कि laminar है, इसके perpendicular है. ठीक है. इसके अबाउट में निकाल सकता हूँ. Now z axis. So यहाँ पे क्या होता है? सिंपली z inertia, moment of inertia about z axis equals to the moment of inertia of along the x axis plus moment of inertia along the y axis. ये है सिंपल आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. और ये बहुत मतलब जनरलाइज नहीं है, बिकॉज यहाँ लिमिटेशन आ गया कि आपका कहाँ लगेगा? लेमिनार 2D ऑब्जेक्ट पर लगेगा. ठीक है. क्लियर. सो ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम नाउ वी विल मूव टू अवर क्वेश्चंस. So students, before going to numericals, let's see the formulas which I have seen so far in the rotational motion, which is very important. Okay, so first is the torque. Okay, the torque, the summation of torque equals to the moment of inertia into the angular acceleration. Okay, just as the force equals to mass into linear acceleration, same as like the momentum. Oh, sorry, torque. Okay, one thing which I haven't told that जो हम टॉर्क ले रहे हैं, दैट टॉर्क जिसके अबाउट ले रहे हैं उसी के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. ठीक है. क्लियर. इफ आई एम टेकिंग अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, टॉर्क अगर मैं ले रहा हूँ सेंट्रोइडल एक्सिस अबाउट, तो उसी एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. ठीक है. इफ इन जनरल इफ आई एम टेकिंग टॉर्क ऑफ टॉर्क्स अबाउट एनी एक्सिस, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी अबाउट सेम एक्सिस. ठीक है. ठीक है. क्लियर है. Okay, so one thing is that now we have seen that the torque, summation of torque, net torque on the body equals to the net change in angular momentum of the body. Clear. From this we can say that angular acceleration, we can write the summation of torque upon moment of inertia. Clear. Same as that we have calculated the acceleration in the case of translation motion. Clear. There is one more thing, the relation between the linear acceleration and alpha and linear acceleration and omega. We have seen this in circular motion. Just writing, be precise. देखो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ linear acceleration की for the center of mass. CM is center of mass. Clear. CM is center of mass. So acceleration of a body at center of mass is equals to the
angular acceleration and the radius. Now this radius is what? This radius is what? It is the distance between the axis of rotation and centroid of body. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? तो ये r है जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो. अब ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी. क्लियर? ये हम यूज करने वाले हैं अभी, मतलब हर क्वेश्चन में यूज होगा ये. सेम अगर हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन इनवर्ड टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ठीक है, ये अबाउट द रेडियस लग रही है. दैट मींस इस रेडियस पे आपका रोटेशन हो रहा होगा. ठीक है. सो अगर हम बात कर रहे हैं लीनियर एक्सेलरेशन in the direction of radius, then we apply this omega square r, and r here also same. This is between the axis of rotation and the centroid of the body. Clear? Okay, these formula बेटा ये formulas जो हैं यही apply हो रहे हैं हर जगह अब questions में. Clear? So let's move to our first question. So this is our first question. Okay, so let's read the question and बी वेरी केयरफुल. ओके, जब भी कुछ भी समझ में नहीं आए, ओके, जस्ट आस्क वाया कमेंट और समथिंग. ओके, बिकॉज इफ दिस बेस क्वेश्चन विल नॉट क्लियर, विल नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस बिफोर आफ्टर दिस. ओके, सो लेट्स मूव. सो वी हैव टू फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बार. दिस इज द बार. इट्स हैविंग द मास m, length, it's having the length, this bar is having the length L, and okay, there is a force on which this bar is resting, and this bar is hinged at one point, and this is called the smooth hinge. अगर कुछ भी information नहीं दे रखी है तो I'll take the smooth hinge. स्मूथ हिंज. अब यहाँ पे सब कुछ लग जाएगा. हमने जहाँ पे देखा हिंज, हमें अगर मैं इसका वो बनाऊंगा FBD, यहाँ पे क्या होगा? I will take two reactions here, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल. सब कुछ लग जाएगा यहाँ पे. अब हर कुछ तो मैंने ले लिया एन वाई, तो मैंने ले लिया एन एक्स. ठीक है. सिंस ये रेस्ट कर रही है, इस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है एंगुलर, कोई भी आपका एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके रेस्ट पर है. अब क्या करना है मेरे को? एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है इस बार का. कब? जब ये एफ फोर्स हट जाए, यहाँ से रिलीज हो जाए, यहाँ से रिमूव हो जाए, राइट, रिमूव रिलीज हो जाए एफ फोर्स. Then at that point I have to calculate what should be the angular acceleration. Angular acceleration कितना होगा इस पॉइंट? क्लियर? दिस इज माय क्वेश्चन. मुझे ये करना है. तो लेट्स कॉपी इट डाउन एंड जैसे कि हमने एफबीडी बनाया तो कंप्लीट करते हैं दिस एफबीडी. लेट मी इरेज दिस ऑल. ओके, सो दिस इज माय कंडीशन. So let's complete the FDB. इसमें इस FDB में सिर्फ एक चीज रह गई, that is the weight of this rod which is mounted at the center of mass. अब देखो यहाँ पर center of mass, centroid, ये पता होना चाहिए आपको. ठीक है. रोटेशन लोगों को इसलिए वीक होता है क्योंकि उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर, सेंट्रोइड्स, अलग अलग चीज के ये थोड़े से वीक रहते हैं. ये कॉन्सेप्ट तो अभी यहाँ पर समझ में आ जाएगा. ओके, वेट आई एम टेकिंग द mg, कैपिटल M into g. क्लियर? नाउ बेटा पर्पस क्या है हमारा? हमें पर्पस है ये निकालना. क्लियर? एफबीडी हमने बना लिया. हमें ये पता है कि अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास पे. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्शन होगी उसकी साइड. ठीक है. सो करते हैं सॉल्व से. अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे पास दो ही फॉर्मूला है. देखो, हर एक जो भी क्वेश्चन करूंगा रोटेशन का, वहां पे दो ही फॉर्मूला है. एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास? टॉर्क का summation of all the torques equals to r vector cross summation of all the this thing equals to moment of inertia of the body about the center of mass into alpha. ठीक है. क्लियर? सॉरी, रॉन्ग हियर. यहाँ पे नॉट ऑलवेज सेंटर ऑफ मास, जो भी एक्सेस है, जो भी
जो भी एक्सेस है वो, और उस एक्सेस से यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है जहाँ फोर्स एक्टेड है, ठीक है, वो है ये दोनों ही फॉर्मूले लगेंगे और बस यही लगेंगे। ठीक है, क्लियर। देखो ये फोर्स तो गया, ये तो रिलीज कर दिया, तो इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो इफ आई राइट वन इक्वेशन फ्रॉम दिस टॉर्क, निकालते हैं, तो यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है और मुझे कहां निकालना है। आई हैव टू कैलकुलेट दिस ऑल टॉर्क एट द पॉइंट जिसके अबाउट ये पूरी की पूरी बॉडी रोटेट कर रही होगी, दैट इज दिस पॉइंट। ठीक है, इसको ओ बोल देता हूं मैं। इस पॉइंट से फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स लग रहा है एट द सेंट्रोइड, और बार का सेंट्रोइड कहां होगा, बिल्कुल सेंटर पे, लेंथ के सेंटर पे। तो ये लेंथ कितनी होगी, L/2। ठीक है, ये लेंथ होगी L/2 एंड दिस इज विल बी इक्वल्स टू द माय आर। जो मैं आर बोलूंगा वो मेरे इसके इक्वल होगा, L/2 के इक्वल होगा। ठीक है, सो फाइंड राइट टॉर्क। तो टॉर्क क्या होगा, दिस आर, आर क्या है, L/2 में L/2 लिख रहा हूं, L/2 इंटू mg। तो मेरा ये इक्वेशन हो गया। दिस शुड बी इक्वल्स टू, अब ये इक्वेशन क्या होगी, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन सा एक्सिस रोटेशन है, दिस ओ। एक्सिस कौन सी है, जो आपके इस पॉइंट से स्क्रीन से बाहर आ रही होगी, ये एक्सिस। इसके अबाउट क्या कर रहा है, बार मूव कर रहा है एंड वी हैव जस्ट सीन दिस अर्लियर। क्या होगा, वो ये होगा ml²/3। ठीक है, ml²/3 लिख रहा हूं मैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/3 इनटू दिस अल्फा। मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। करो इसको इक्वल, क्या हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी विल गेट 3/2 g here अपॉन l। ये l है और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एंगुलर एक्सप्रेशन हमारा निकल गया। देखो कितनी आसानी से निकल गया, कितनी आसानी से। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, क्लियर। अगर इस क्वेश्चन में, सपोज इस क्वेश्चन में थोड़ा एक्सटेंड करता हूं मैं, इफ इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड द रिएक्शंस एट हिंज। आपको अब इस क्वेश्चन में रिएक्शन एट हिंज भी निकालनी है। सो अब कैसे करेंगे, इसी वक्त पे जब आपका फोर्स रिलीज हो गया है, आपको रिएक्शन निकालनी है Ny/Nx, Ny/Nx निकालनी है आपको। क्लियर, लेट्स डू दिस। देखिए, अब जब भी कुछ चीज पूछी हमने, अब क्या पूछा, उसने रिएक्शन पूछा। हम रिएक्शन इज अ फोर्स। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को टोटली किससे करना होगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से करना होगा। ठीक है, अब देखो, जो रिएक्शन है, रिएक्शन लग रही है हॉरिजॉन्टल में, एक लग रही है वर्टिकल में। क्लियर, एक लग रही है हॉरिजॉन्टल, एक लग रही है वर्टिकल। तो मुझे दो जगह सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इन द वाई डायरेक्शन, सेकंड इन एक्स डायरेक्शन। उसी के अकॉर्डिंग मेरा जो भी मुझे निकालना मुझे मिल जाएगा। क्लियर, सो एफबीडी मेरा रेडी है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाने के लिए मुझे एक एक्सेलरेशन अज्यूम करना पड़ेगा जहां ये जा रहा होगा। ठीक है, आई एम डूइंग दिस इन फर्स्ट इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। ठीक है, वाई डायरेक्शन के लिए मैं अभी के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि इसका मोशन कहां होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, आई एम टेकिंग दिस एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, यहां पे थोड़ी सी चीज अलग है। यहां पर जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा, इन द केस ऑफ रोटेशनल क्वेश्चन, जहां पे मुझसे कुछ भी फोर्स के बारे में पूछ लिया होगा, मैं एक्सेलरेशन जो भी अज्यूम करूंगा, आई विल अज्यूम एट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आई विल अज्यूम एवरी एक्सेलरेशन रोटेशनल क्वेश्चन एट सेंटर ऑफ मास, चाहे वो रेडियल एक्सेलरेशन हो, चाहे वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो। क्लियर, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था अभी आपको, ये वाला। ठीक है, नाउ सी, सो write the second law of motion for this problem in y direction. ठीक है, सपोर्टिंग फोर्स mg है, अपोजिंग फोर्स ny। नाउ मास, जो मास ऑफ दिस, सो ये कैपिटल मास है, बट ठीक है, ओके, आप समझ सकते हैं। ठीक है, m इंटू ACM। अब ACM कौन सा वाला आएगा, ACM आएगा टेंजेंशियल, बिकॉज ये टेंजेंट है।
और ये इस ऐसे मूव कर रहा है, राइट? तो ये टेंजेंट है, क्लियर? सो दिस शुड बी टेंजेंट, एंड मैंने बताया था ACM एट टेंजेंट क्या होगा इन रोटेशन, वो होगा अल्फा इंटू आर, एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड, क्लियर? तो हम इसे यूज करने वाले हैं, दिस इज mg माइनस ny m इंटू अल्फा इंटू आर, ठीक है बेटा? आपके रोटेशन के क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते जितना आप उसको एज्यूम कर लेते हो, इट्स वेरी इजी। mg, मैं इसको इधर ले गया, सो दिस इज माइनस अल्फा की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं जो हमने निकाली है, ठीक है? ओके यार, ओके ठीक है, चलो समझ में आ जाएगा। अल्फा 3/2 g/l, क्लियर? नाउ व्हाट इज r हियर? r यहां पर l/2 है, ठीक है? तो r की जगह मैं l/2 पुट कर दे रहा हूं, r इज l/2, ठीक है? r हियर इज l, क्लियर? तो यहां से मेरा एन वाई निकल के आ जाएगा इजीली जब मैं कैलकुलेट करूँ उसको, ठीक है? इट विल बिकम m कॉमन ले लेता हूँ, जी भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा, इट विल बिकम 3/8, ठीक है? तो 1 माइनस 3/8 इज इक्वल टू 5/8, क्लियर? सॉरी, ये एक्चुअली इट्स नॉट 2, इट्स l, राइटिंग थोड़ी सी खराब, ओके? दिस इज l से l कैंसिल हो जाएगा, okay? So this is 3/4, this is 1, so we will got change my answer, so it will got 1/4, ठीक है? So it is mg/4, clear? Now what we left? nx निकालते हैं अब, okay? Just take this to next page, सी, ये कंडीशन है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल राइट द इक्वेशन इन x डायरेक्शन, सेकंड लॉ, ठीक? मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है देखो डायरेक्शन क्या होगा आपका एक्सेलरेशन का, सेंटर मास का अंदर की साइड होगा, लेट्स टेक दिस इनवर्ड, ठीक है? दिस इज द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ठीक है? सो अज्यूम कर लो, सो वो एक्सेलरेशन nx होगा, सो nx इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये कौन सा वाला एक्सेलरेशन है? दिस द एक्सेलरेशन इन नेगेटिव r डायरेक्शन। और बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? ये होती है ओमेगा स्क्वायर r, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बताओ यहां पर जब सिस्टम रेस्ट से रिलीज हुआ है, क्या यहां पे एट दैट इंस्टेंट कोई ओमेगा है? नहीं है। ओमेगा यहां कितना है? 0 है, सॉरी, ओमेगा यहां कितना है? 0 है। हियर ओमेगा इज 0, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सो ओमेगा, इनिशियल ओमेगा क्या होगा? 0 होगा, तो इनिशियल ओमेगा 0, ये 0, यानी एक्सेलरेशन 0, दैट मींस nx कितना होगा? 0 होगा। देयर इज नो रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आपका कोई भी रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं है, क्लियर? सो लाइक दिस we are going to solve all the questions of rotation motion, clear? I hope this समझ में आया होगा आपको, okay? So let's move to next question. So students, the second question, okay? So it's equivalent to the first question, but we have changed something, as you can notice. So just read the question and try to solve by yourself this question, because it is just similar to the first question, ठीक है? Okay, just read the question. A uniform rod of length L, ठीक है? There is a rod which having the length L, rotates in a vertical plane about the horizontal axis, which is L/4 from one end of, okay, one end as is shown in figure, ठीक है? Okay, so from this one end, this hinge is having the length L/4, ठीक है? So this hinge, this whole system is in vertical plane में है, और जो horizontal जब आपका रोटेशन हो रहा है,
अबाउट द एक्सिस, दैट एक्सिस इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल। आप देख रहे हो उससे स्क्रीन से बाहर आती हुई, इट्स अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उससे आपका रोटेशन हो रहा है, ठीक है, क्लियर। सो फाइंड द angular acceleration of a rod at the position when okay this F force as support is released, ठीक है, ये F support रिलीज हो जाएगा, ओके, वो एट दैट केस, उसी समय, उसी क्षण क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द एंगुलर एक्सेलरेशन, हमें वो एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ओके। एंड वन थिंग इज नॉट गिवन है, लेट्स अज्यूम द मास ऑफ दिस रॉड इज m, क्लियर। तो बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, वहां पे क्या किया था हमने, पहले एफ डी बनाया था, सो जस्ट कॉपी द फिगर एंड ड्रॉ द एफ डी बी। हिंज था यहाँ पे, हमने दो फोर्स माउंट कर दिए थे हिंज पे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कैसे भी ले दो, आपको हॉरिजॉन्टल लेना हो, डाउट हो किसी को कि सर आपने कभी कभी पॉजिटिव ले लेते हो, कभी नेगेटिव ले लेते हो, कैसे, आपको जहां लेना है वहां लो, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा उससे मैं डायरेक्शन बता लूंगा, ठीक है। सो दिस इज माई एन वाई, दिस इज माई एन एक्स, ठीक है, ये पॉइंट हिंज है, यहां से जो लेंथ है उसकी एल बाय 4 है, ठीक है। देयर इज वन पॉइंट थिंग, वन मोर थिंग, जो सेंट्रोइड है वो आपका यहां पर है, सेंटर ऑफ मास, ठीक, ओके। और यहाँ इस एफ डी बी पे ये है नहीं, ये रिलीज हो चुका है, एंड मास ऑन सेंटर ऑफ मास, सॉरी वेट ऑन सेंटर ऑफ मास, दैट इज m into e, क्लियर। अज्यूम सम एक्सेलरेशन, मान लो एक्सेलरेशन ये मान लिया, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, I thought it is not visible, okay, so just move to solve this। क्या करेंगे, हमारे पास एक ही इक्वेशन है, क्या करो, दो इक्वेशन है, t summation of torque equals to summation of r vector cross f vector equals to I, किसके अबाउट, उसी एक्सेस के अबाउट, यहां पर जो केस है वो हिंज्ड है, हिंज के अबाउट, इनटू अल्फा, इनटू अल्फा, क्लियर। हमें यही लगाना है, हर जगह यही लगाएंगे हम। सो हमें यहाँ पे एक ही फोर्स है जो, जिसकी वजह से हम एक्सेस पे टॉर्क निकाल पाएंगे, क्योंकि देखो एन वाई और एन एक्स, इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक द मोमेंट, मोमेंट, ठीक है, हमने देखा था लेक्चर थर्ड में, ओके। सो राइट द टॉर्क दैट इज आर, अब यहाँ पे आर कितना होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ मास एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एल बाई 2 है पूरा यहाँ तक, और ये एल बाई 4 है, तो एल बाई 4, ओके। सो एल बाई 4 इंटू फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू दिस आर इक्वल्स टू अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, क्या पता है क्या हमको, डायरेक्टली डायरेक्टली लिखते हैं नहीं, हमें साइड साइड के लिए पता है एकदम, और हमें पता है सेंटर ऑफ मास के लिए, हमें बीच के लिए कहीं नहीं पता है, हम इसे निकालेंगे बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाउ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट हिंज, एज वी नो द पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, सेंटर ऑफ मास से पता है मेरे को एक्सिस में, प्लस इसका मास इनटू ए स्क्वायर, एंड व्हाट इज ए, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस, ये एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, बाहर निकलती हुई सेंटर से, ठीक है। सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एम एल स्क्वायर बाय, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम, अब यहाँ पे ए क्या है, ए इज एल बाय 4, सो एल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये सम करोगे तो एल स्क्वायर क्या करना आएगा, 16 12, ओके, आउट टू बी 7 by 48, ओके यस, 7 by 48 आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज चलेगा, ठीक है, और यहाँ पुट कर देता है।
यहाँ से m कैंसिल, l से एक l कैंसिल, we get 16, 12, 7. Okay, so this is the angular acceleration in this question. Okay, यहाँ पर भी आप nx निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, तो आपका nx 0 होगा, वो भी हमने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सेम ny निकाल सकते हो आप यहाँ। ठीक है, कैसे? बाय यूजिंग द सेकंड लॉ, बाय यूजिंग सेकंड लॉ। चलो यहाँ पे भी आप निकाल देता हूँ, बिकॉज आपको ट्राई कर ही होंगे आप लोग। इन दिस केस अगर मैं निकालता हूँ, सेकंड लॉ लगाता हूँ बाय डायरेक्शन में, तो क्या होगा, mg माइनस ny। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन होगा m इंटू acm टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये कितना होगा, इट विल बी अल्फा इंटू l/4। ठीक है, r इज डिस्टेंस बिटवीन द, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, अल्फा पता है, अल्फा पुट कर दोगे वहां पे, तो mg सिंपल यहाँ से mg nx सॉरी ny m इंटू 12/7 g बाय 4, ये कटा 3/7। ठीक है, यहाँ से निकाल लेना। ओके, क्लियर? तो 3/7, सॉरी इट्स नॉट 3/7, 4/7, तो मैक्स करोगे 4/7, ये आंसर होगा। ठीक है, 4/7 mg जब एन बाय होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो आई हैव टू टेक ब्रेक बिकॉज टाइम इज गेटिंग एक्सीडेड, सो लेट्स ब्रेक हियर। I will take some more question in next lecture. So meet me in next lecture. So thank you.